Do you think that Citizenship Amendment Act is going to be an issue for the voters, especially in Upper Assam? CAA is not an issue. CAA पर जो एजिटेशन कर रहे थे लोग, बहुत सारे झूठ बोल रहे थे। 1.5 करोड़ लोग एक पड़ोसी देश से घुस आएंगे यहाँ और यहाँ नौकरी ले लेंगे लोगों से, कम वेजेस में काम करेंगे। वो हुआ नहीं, ये बिल्कुल झूठ निकला, बिल्कुल झूठ साबित हुआ। प्रियंका गांधी ने रिसेंटली बताया है कि डबल इंजन मतलब दो सीएम है आसाम पे। ये जो आरोप ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ हमारी सरकार है, यहाँ हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी मुख्यमंत्री हैं, और हमारे बहुत सारे केपेबल लीडर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा। क्या वो स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस यूडीएफ का मुख्यमंत्री का चेहरा है बदरुद्दीन अजमल? उनको स्पष्ट करना चाहिए, क्या उनका एकमात्र जो फेस है बदरुद्दीन अजमल, वो सचमुच उनका मुख्यमंत्री कैंडिडेट है या नहीं, स्पष्ट करें। भाजपा ने बताया है कि असम पे सरकार आएगा तो एंटी लव जिहाद और एंटी जो लैंड जिहाद, ये कानून लेके आएंगे। Now, love jihad is being misrepresented. It is not against any religion. It is about fraud. किसी लड़की को आप फंसाने के लिए आप अपने आप को मिसरिप्रेजेंट करोगे और फिर शादी कराओगे। शादी करने के बाद फिर आपकी असलियत निकलेगा और फिर आप उन पर दबाव डालोगे कि नहीं, मैं वो नहीं, मैं ये हूं और आप भी ये बनना होगा। That is wrong. নমস্কাৰ, টাইমেটৰ দৰ্শকক মই জ্যোতিদীপ বৈশ্যই স্বাগতম জনাইছোঁ। নিৰ্বাচনৰ লৈ বৰ্তমান সময়ত প্ৰচাৰ চলি আছে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকী আছে, আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ মাজত এনেকুৱা এগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতা আছে, যিগৰাকীয়ে বৰ্তমান সময়ত অসমৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে সমীকৰণ প্ৰস্তুত কৰি আছে বিজেপিক পুনৰবাৰ শাসনলৈ অনাৰ বাবে। আমাৰ লগত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপাধ্যক্ষ বেজন্ত জয় পাণ্ডা ডাঙৰীয়া। তেওঁ অসমৰ প্ৰভাৰী। আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম আৰু জানিব চেষ্টা কৰিম যে আগন্তুক সময়ত বিজেপিক শাসনলৈ অনাৰ বাবে কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। পাণ্ডা ডাঙৰীয়া, ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৱেলকাম টু আছাম এণ্ড টাইমিং। Thank you. You have been touring Assam this election, so few hours left for the first phase. So how do you see that how BJP is going to perform this election? I have been coming to Assam for now more than 3 months, Yes. and I have been staying here almost all the time. The feedback I am getting from my travels all around Assam is extremely positive for the BJP, and we are going to come back with bigger numbers, much bigger numbers, and take forward the agenda of governance that we have been implementing. And this basically rests on 3 things, 3 platforms. One is Suraksha, second is Samriddhi, third is Sanskriti. That is security, development and culture of Assam. On all these fronts, there has been tremendous improvement in the last 5 years. Look at the law and order situation. Look at the border situation. Look at the drastic reduction of infiltration because of the focus on border management. Look at the amount of development. For example, you can compare, there are lots of statistics, ki what had happened in previous 70 years and what happened in last 5 years. Take for example number of medical colleges. How many were built in previous 70 years and how many have been built or are under construction now in the last 5 years. Same thing with bridges, same thing with roads. One can just go on and on. The corruption has dramatically been controlled. Everybody knows about the APSC scandal. Today with DBT, अरुणोदय स्कीम डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, नो करप्शन, वो लाखों घर पहुंचता है, एंड दैट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स. सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू संस्कृति, असम में दशकों के लिए फॉर मैनी डेकेड्स द पॉलिटिकल डिबेट हैज़ बीन अबाउट प्रिजर्वेशन and going forward of Assamese culture, which has been swamped by massive immigration, lot of it illegal immigration. Previous governments have totally ignored this aspect, and it was only natural that people of Assam felt beleaguered. What this government has done, for example, the Namghar Yojana, as everybody knows, Namghar is the core essence of the Assamese ethos. And they had been completely neglected. They were in very sad state. In fact, most of the Namghars were illegally occupied by illegal immigrants that had to be evacuated. So the thrust that this government is giving to all three
Suraksha, Samriddhi and Sanskriti has got tremendous response. I will sum it up by saying there is a pro-incumbency environment in Assam. आपने बताया है कि प्रो इनकम्बेंसी अभी एनवायरनमेंट है असम पे। अभी कल ही आप लोगों ने जो चुनाव के लिए जो संकल्प पत्र वो आप लोगों ने जनता के सामने लाया था, वहाँ पे आप लोगों ने बताया है कि भाजपा की तरफ से बोला गया है कि समृद्ध असम गढ़ने के लिए यू विल टेक डिफरेंट काइंड ऑफ इनिशिएटिव, बट कांग्रेस बोल रहे हैं, वो लोग 5 गारंटी दे रहे हैं, and they are talking about the 5 guarantee, and they are saying that 5 guarantee the people of Assam vote for Congress. How the BJP manifesto is going to tackle the Congress 5 guarantee, and how do you see that? मेरे ख्याल में असम के जनता कांग्रेस को पहचान गए हैं और कांग्रेस के झूठे वादा और कांग्रेस के भ्रम फैलाना का जो तरीका को समझ चुके हैं। तो कांग्रेस जहाँ भी पावर में आती है, जैसे सिमिलर प्रोमिसेस एंड गारंटीज दे हैव गिवन इन मध्य प्रदेश, दे हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड। सिमिलर गारंटी दे गेव फॉर राजस्थान, they have not implemented. Similar guarantee they gave for Chhattisgarh, they did not implement. Sometimes they have announced that we will do this in 24 hours, we will do this in 1 month. Now already 2-3 years have gone by, they have not done it. तो कांग्रेस की झूठे वादा सब जानते हैं। कांग्रेस जहाँ पावर पे आएगा, आपको ये गारंटी ज़रूर मिलेगा कि वहाँ विकास नहीं होगा, वहाँ सांप्रदायिक हिंसा होगा, वहाँ जात भेद की लड़ाई होगा, क्योंकि वो वही करते हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करते हैं। ऐसे बहुत गारंटीज आपको मिलेंगे जो कांग्रेस नहीं बताते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस असम में आके जो भड़काने के लिए कोशिश कर रहे हैं, देखिए चाय बागान में उन्होंने इतने सालों तक कुछ नहीं किए। हम अभी चाय बागान के जो वेतन, जो वेजेस, इसको मोर देन डबल किया है, 200 रुपये से ज़्यादा हुआ है। अभी होने के बाद वो भ्रम फैला रहे हैं कि ये लागू नहीं होगा। भाई कैसे लागू नहीं होगा? ये एक कानून है, ये सरकार से पास हुआ है। ऐसा नहीं कि ये केवल वादा है, जैसे कांग्रेस करते हैं वादा। और आप जानते हैं अभी निकट में कांग्रेस के नेता लोग एक पब्लिक फोरम में बात करते करते वो रिकॉर्डिंग हो गया कि वादा तो सीरियसली नहीं दिया जाता है, वादा दिया जाता है केवल वोट लेने के लिए। हम वैसे नहीं है, हम जहां वादा किए हैं, आप देखिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड नेशनली और असम में। प्रियंका गांधी आ रहे हैं, वो चाय बागानों पे जा रहे हैं, वो शी वाज प्लकिंग टी लीव्स और डिस्कसिंग विद द वुमेन, एंड शी वाज प्रॉमिसिंग दैट इफ द कांग्रेस कम टू द पावर दे विल डेवलप एंड दे विल चेंज ड्रास्टिकली देयर लाइफ। सो प्रियंका गांधी का असम में आना, चाय बागानों पे जाना, वो पहली चरण के चुनाव में उसका प्रभाव कितना होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस के नेता 5 साल असम को भूल गए थे, आए नहीं, कुछ कहे नहीं, कुछ करे नहीं। इस बीच में यहाँ सांप्रदायिक हिंसा बंद हो गया, इस बीच में घुसपैठ ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया, और डेवलपमेंट के बारे में जो कहा 5 साल में बहुत कुछ हुआ है जो 70 साल में नहीं हुआ था। कांग्रेस के नेता आते हैं और ऑफ सीज़न में जाके चाय बागान में पत्ता तोलते हैं, वो जो सीज़न में नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो एक डिस्कनेक्ट है, वो एक कोई एजेंसी को लेकर फ़ोटो ऑप करवाने चाहते हैं, असलियत में नहीं। दूसरी बात, जब फ़ोटो ऑप करते भी हैं फिर वो पोस्ट करते हैं असम के चाय बागान के फ़ोटो नहीं, कभी ताइवान के, कभी श्रीलंका के। तो ये फ़ोटो ऑप कल्चर मेरे ख्याल में लोग उनको समझ चुके हैं। कांग्रेस के अपने नेताओं को देखिए कैसे वो भड़क रहे हैं और कांग्रेस के बारे में क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति आसाम में वही है जो ऑल ओवर द कंट्री जो है। एक बात मेरे मन में है, AIUDF जो मौलाना बदरुद्दीन अजमल का AIUDF है, कांग्रेस के साथ वो लोग एक ही मंच में आ गया है, वो लोग महागठबंधन बना रहे हैं। और जो ओपिनियन पोला है रिसेंटली, जो ओपिनियन पोला है उसमें दिखाया है कि कांग्रेस और AIUDF को सीटें मिल रहे हैं, हालांकि बता रहा है कि भाजपा की सरकार फिर से आएंगे। सो ये मौलाना बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस का जो गठबंधन है, हाउ चैलेंजिंग फॉर भारतीय जनता पार्टी दिस टाइम? आपने ही ये सवाल में जो पूछा इसमें कह ही दिया कि जितने सारे ओपिनियन पोल आए हैं, एवरी सिंगल सर्वे एंड ओपिनियन पोल शोज दैट BJP and NDA is again forming the government. Some are saying only clear majority, some are saying 2/3 majority, some are saying more than that. We have confidence of getting 100 seats in the alliance. तो
This is a very good question you have asked, because this Congress alliance with Maulana Badruddin Ajmal and UDF, it is something, it's a serious turning point, because Congress's tallest leader of last so many decades, when he was alive, Tarun Gogoi ji, he never aligned with UDF and Badruddin Ajmal. He used to ask, who is he? Now, this same Congress has become so desperate कि यहाँ केवल यहाँ नहीं, जैसे वेस्ट बंगाल में आईएसएफ के साथ इन्होंने जुड़ा, जो एक रेडिकल पार्टी है, जो एक सांप्रदायिक चिंताधारा की पार्टी है, और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता लोग इनको निंदा कर रहे हैं। यहाँ भी ये जो बदरुद्दीन अजमल और यूडीएफ के साथ हाथ मिलाए हैं, ये शायद 2-3 सीट 4 सीट यूडीएफ को फायदा दे सकता है, लेकिन कांग्रेस को नहीं। इसका प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूँ। इसका इतना बूमरैंग हो रहा है कि एक पीढ़ी के लोग को उन्होंने कम्युनलाइज करके, पोलराइज करके उनके वोट खींचने के लिए मेजॉरिटी ऑफ असम को उन्होंने एलियनेट कर दिया है। मैं इतना सारा घुमा हूँ, पीपल आर रिपल्स्ड, दे आर शॉक्ड एंड एंग्री एट दिस कोलैबोरेशन बिटवीन कांग्रेस एंड यूडीएफ। सो मच सो कि आप अगर अपर असम जाए, अभी पहला फेज में इलेक्शन 2-3 दिन में हैं, अपर असम में ये इसको डाउन प्ले करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसका पोस्टर, ये गठबंधन का पोस्टर नहीं है कांग्रेस यूडीएफ का, उनका जॉइंट रैली नहीं है, उनका फ्लैग जॉइंटली कभी नहीं देखते हैं, और वो वहाँ प्रिटेंड करते हैं जैसे कि गठबंधन नहीं है। लेकिन आज की दुनिया 21st सेंचुरी में होता नहीं, और हम इसको पॉइंट आउट करते हैं और लोग बहुत उत्तेजित हैं उन पर। तो मेरे ख्याल उन पर ये बूमरैंग करेगा। शायद यूडीएफ को थोड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन मुझे जो खबर मिल रही है, कांग्रेस तो बिल्कुल ध्वंस हो जाएगा असम में, बंगाल में। लेकिन कांग्रेस बोल रहे हैं कि यूडीएफ के साथ आएगा, बदरुद्दीन अजमल के साथ आएगा, तो वो लोग भी 100+ लेके जाएंगे, जैसे आप लोग ने दावा किया है 100+ का। कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल और यूडीएफ के साथ हाथ मिलाकर जो परिचय देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो असम की आइडेंटिटी को पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑथेंटिक असमीज़ नहीं है। असम में इतने सारे हमारे वर्ग हैं, सब रिलीजियंस के, सब जनजाति के, लेकिन वो असमीज़ कल्चर के हैं, जो एक अलग चिंताधारा, अलग कल्चर ला के असम पर थोपने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और वो उस स्ट्रैटेजी पे सपना देख रहे हैं कि असम पे फिर राज करेंगे। मेरे ख्याल में ये देयर इज़ अ बिग डिस्कनेक्ट। आई थिंक दे आर टोटली आउट ऑफ टच विथ मेजॉरिटी ऑफ असमीज पॉपुलेशन, जस्ट बिकॉज दे वांट टू पेंडर टू वन स्मॉल पॉपुलेशन। I want to know from you that another thing, that if you look at this election, there is another issue, that is Citizenship Amendment Act. तो अमित शाह जी ने बंगाल में बताया है कि कहा तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा बंगाल में, अगर भाजपा की सरकार आते हैं, फर्स्ट कैबिनेट डिसीजन लेगा। तो जेपी नड्डा जी ने कल भी बताया है कि ये नेशनल, मतलब राष्ट्रीय पर्याय में लिया है, तो यहाँ पे कहाँ इम्प्लीमेंट होगा। सो देयर इज ए वेरी, आई वुड से द पीपल ऑफ असम in 2019, they were very offended regarding the Citizenship Amendment Act. Do you think that Citizenship Amendment Act is going to be an issue for the voters, especially in Upper Assam? Because Congress is promising if their government will come, they will repeal CA. So let me say 3 or 4 things about this. First of all, इस चुनाव में असम में मैं जो देखा है घूमकर, CAA is not an issue. दूसरी बात, CAA का एक कमिटमेंट था इंडिपेंडेंस टाइम से, कांग्रेस का भी, महात्मा गांधी जी का भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो यहाँ के सांसद थे वो भी कहे थे पार्लियामेंट में, इट इज़ अ लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। लेकिन अब तक उसका रूल्स अभी फ्रेम नहीं हुए हैं, कई लोग उसको चैलेंज किए हैं, वो एक प्रोसेस है जी। दूसरी बात, CAA पर जो एजिटेशन कर रहे थे लोग, बहुत सारे झूठ बोल रहे थे। एक झूठ बता रहे थे कि CAA के वजह से 1.5 करोड़ लोग एक पड़ोसी देश से घुस आएंगे यहाँ, और यहाँ नौकरी ले लेंगे लोगों से, कम वेजेस में काम करेंगे। वो हुआ नहीं, ये बिल्कुल झूठ निकला, बिल्कुल झूठ साबित हुआ। यहाँ भ्रम फैलाने के लिए कोशिश किए कि भारत के मुसलमान नागरिकों को बाहर कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भ्रम है। आप झूठ को
थोड़ा ड्रामा करके टेंशन कर सकते हो 2-4 हफ्ते के लिए, 1 महीना के लिए, लेकिन अभी 1.5 साल हो गया और लोग को पता चल गया है कि वो ड्रामा था, वो फेक था। ये नहीं है कि कोई भारतीय मुसलमान नागरिक को बाहर किया दिया जाएगा, ये बिल्कुल फॉल्स है। और ऐसा नहीं कि कोई ऐसे घुस आएंगे बहुत सारे बाहर से, क्योंकि इसका कट ऑफ डेट था 2014 में जी। तो ये जब जानकारी पब्लिक में आ गई है, बहुत सारे लोग जो इसको अपोज कर रहे थे अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और सबसे ये जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि इसको रिपील कर देंगे असम में जीतने से, ये तो एक पार्लियामेंट का कानून है जी। आप एक स्टेट लेजिस्लेचर पे पार्लियामेंट का कानून रिपील नहीं कर पाएंगे। तो या तो ये समझते हैं कि असम के लोग समझ नहीं पाते हैं, दिमाग नहीं है, या तो वो अपने कांग्रेस के नेता इसको नहीं समझते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर का क्या अथॉरिटी और पार्लियामेंट का क्या अथॉरिटी। तो ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। लोग जान गए हैं कि कांग्रेस क्या है और कैसे झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब असम आते हैं, आज भी वो असम पे आएंगे, असम की दौरा करेंगे, तो मोदी जी बता रहे हैं डबल इंजन ग्रोथ, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, असम में भी भाजपा की सरकार, एंड देयर शुड बी अ डबल इंजन ग्रोथ। बट प्रियंका गांधी ने रिसेंटली बताया है कि डबल इंजन मतलब 2 सीएम है असम पे। इसको आप लोग कैसे काउंटर कर रहे हैं? बिकॉज रैली में कांग्रेस बार बार इस बात को उछाल रहे हैं। देखिए, डबल इंजन का मतलब है केंद्र में हमारा सरकार, राज्य में हमारा सरकार, और उसके वजह से तालमेल अच्छा और काम बहुत हुआ है। जो उदाहरण मैं पहले दिया था, जितने मेडिकल कॉलेजेस बने थे 70 साल में, उससे ज़्यादा अभी बन रहे हैं पिछले 5 साल में। जितने ब्रिजेस थे उससे ज़्यादा, 20,000 किलोमीटर के रास्ता के काम, अरुणोदय स्कीम लागू हो गया है। जैसे कि हमारा आयुष्मान भारत स्कीम, जो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ स्कीम, कई राज्यों में लागू नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली में, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि लोगों को सब बेनिफिट पहुंचे और वो मोदी जी को प्रशंसा करे। लेकिन डबल इंजन सरकार होने की वजह से यहाँ लागू हुआ है और हर कोई आसामीज नागरिक को पर हर साल वो 5 लाख रुपए का फैसिलिटी है, कोई मेजर मेडिकल इमरजेंसी हो तो ये डबल इंजन सरकार का बेनिफिट। ये जो आके आरोप लगा रहे हैं, देखिए पहले तो ये जो आरोप ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ हमारी सरकार है, यहाँ हमारी चीफ मिनिस्टर हैं जी, माननीय सर्बानंद सोनोवाल जी मुख्यमंत्री हैं, और हमारे बहुत सारे केपेबल लीडर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बहुत सीनियर हैं, बहुत मेहनती हैं, उनके वजह से बहुत सारे ये जो हमारे योजनाएं इम्प्लीमेंट हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वी हैव लॉट ऑफ टैलेंट, and at the top we have 2 or 3 senior people who are very well known all across Assam। लेकिन मुख्यमंत्री एक हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं हमको पोक करने के लिए। मैं इनको वापस पूछूंगा, देखिए हम जहां सरकार में हैं, हमारा परंपरा है, इट इज आवर ट्रेडिशन कि व्हेन वी आर इन गवर्नमेंट वी डोंट प्रोजेक्ट ए सिटिंग चीफ मिनिस्टर, ही इज ऑलरेडी द सिटिंग चीफ मिनिस्टर। पहले प्रोजेक्ट किया गया था जब सरकार में हम नहीं थे, जब हम सरकार में हैं इस इशू डिस्कशन नहीं होता है। मैं उल्टा सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस यूडीएफ के अलायंस में कौन है चेहरा चीफ मिनिस्टर के लिए? क्योंकि कांग्रेस में तो स्वर्गीय तरुण गोगोई जी के बाद कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। तो क्या वो स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस यूडीएफ का मुख्यमंत्री का चेहरा है बदरुद्दीन अजमल? वो कहने के लिए डर रहे हैं क्योंकि असम के लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनको पहले स्पष्ट, हमारा तो मुख्यमंत्री है, उनको स्पष्ट करना चाहिए क्या उनका एकमात्र जो फेस है बदरुद्दीन अजमल, वो सचमुच उनका मुख्यमंत्री कैंडिडेट है या नहीं, स्पष्ट करें। हम लोगों ने एक पोल बनाया था, लाइव किया था कि आपका हु इज़ योर फेवरेट चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, तो उसमें दिखाया गया है जो महागठबंधन के हैं, जो आपने बताया, वहाँ पे गौरव गोगोई और बदरुद्दीन अजमल का नाम ही ज़्यादा आया है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल इन असम हु वांट्स अजमल टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। Look, there is a demographic which is based on immigrant demographic which may want that. Please remember, the people of Assam certainly know this, but I have been learning about the history of Assam. When was UDF formed? It was related to IMDT Act, was it not? Against which our leader, Chief Minister Sarvanand Sonowal ji, went all the way to Supreme Court and created an image for fighting for Assam. So
वो जिस लिए फॉर्म हुआ था यूडीएफ, किसके लिए? नॉट ऑल असम के लिए, घुसपैठियों के लिए, घुसपैठियों के लिए फॉर्म हुआ था। तो ये तो स्वाभाविक है कि जो घुसपैठी हैं वो उनका लीगल स्टेटस यहाँ डाउट में है। हालांकि वो वोटर कार्ड कर लिए होंगे, लेकिन लीगल स्टेटस कई घुसपैठियों का डाउट में है, तो वो तो ज़रूर चाहेंगे बदरुद्दीन अजमल को। दुख इस बात की है कि कांग्रेस उसको समर्थन कर रही है। कांग्रेस भी चाहती है बदरुद्दीन अजमल बने यहाँ के मुख्यमंत्री एंड नॉट हमारे बीजेपी के लीडर। द रीज़न इज़ उनका कोई चेहरा नहीं है कांग्रेस का। ये चाहते हैं बदरुद्दीन अजमल को सीएम बनाने के लिए, लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ असम में रिएक्शन हो रहा है। लेकिन इनको स्पष्ट करना होगा, आपको पूछना होगा उनको कौन है उनका मुख्यमंत्री चेहरा। आप लोग ने मैनिफेस्टो में एक बात आप लोग ने लिखा है कि एनआरसी के ऊपर लिखा है कि इफ द गवर्नमेंट कम इनटू द पावर इन नेक्स्ट टाइम they will start the reprocess of NRC, and those who are not Indian citizen, if their name were included in NRC, those name will be taken out, and proper Indian citizens' name will be included. So how do you see that the process of NRC to start again, because it was a long process and it was in Supreme Court, under the guidance of the Supreme Court, the NRC was done in Assam. So again, 2 or 3 important things to clarify. As you have rightly pointed out, Congress is trying to give the misrepresentation that somehow the problems related to NRC have to do with us. It is not at all. As you know, the NRC process started during a Congress government and the original accord, and this is decided by and monitored by Supreme Court. Yes. So first of all, the blame should lie where it has originated from. Secondly, it is clear that there were some problems in the NRC implementation. See, every country has an NRC. Every democracy has an NRC to establish who is a citizen, who is not a citizen. You have it in European countries and other countries also. Lekin the way it happened here, there were problems. Everybody knows in Assam कि problems थे. तो हम संकल्प पत्र में ये स्पष्ट किया कि हम चाहते हैं कि ये problems ना हो. We have promised to take up this matter कि दोबारा जब होगा कि ऐसा ना हो कि कोई जेन्युइन इंडियन सिटीजन इसमें फंस जाए। ये केवल होता है कि जो नॉन जेन्युइन इंडियन सिटीजन, किसी भी उनका बैकग्राउंड जो भी हो, उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया वगैरह, इसमें कोई लैक्यूने नहीं होना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हैं, तो हम वहीं पे जाके इसको प्रेस करके स्ट्रीमलाइन करने के लिए वादा किया। जी, एक उत्तर प्रदेश में देखा है आप लोग ने एंटी लव जिहाद कानून लेके आए थे। हम लोग ने देखा है अलग राज्यों में भी, मध्य प्रदेश में भी लेके आए हैं, और मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र ने भाजपा ने बताया है कि असम पे सरकार आएगा तो एंटी लव जिहाद और एंटी जो लैंड जिहाद ये कानून लेके आएंगे। सो इसका कितना इम्पोर्टेंस है असम की कॉन्टेक्स्ट पे? पहले 2-4 बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आप देखे होंगे कई सेक्शंस, वर्ग जो पहले बीजेपी को वोट नहीं देते थे, अभी ज़्यादा वोट दे रहे हैं असम में भी। इसका वजह कि 5 साल में उनको पता चल गया कि भाजपा के बारे जो भ्रम फैला जा रहा था वो गलत है। 5 साल में कोई भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुआ है असम में, और 5 साल में जितने सारे योजनाएं के बारे में बात कर रहा हूँ वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। जब हम देते हैं ये विभिन्न स्कीम, सब ये आपका रिलीजन, कास्ट, क्रीड, इस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, सबके पास जाता है। तो ये एक स्पष्ट होना चाहिए भारत बीजेपी के। अब जो लव जिहाद, लैंड जिहाद के बारे में पूछ रहे हैं, लैंड जिहाद आसाम का ये टर्म शायद नया है, लेकिन इशू पुराना है। ये इशू मैनी डेकेड्स का है, बहुत दशकों का है, क्योंकि लोग आके जैसे ये 17 पे घुस गए, 17 सब कब्जा करके रखे थे। वो अलग अलग जो सरकारी ज़मीन है ब्रह्मपुत्र के किनारे, उस पर कब्जा करके रखे थे। ये तो है सही बात कि देयर वाज अ वॉर ऑन ऑलमोस्ट लाइक ऑक्यूपाइंग असम, सो दिस हैज़ टू बी डेल्ट विद। नाउ लव जिहाद इज बीइंग मिसरिप्रेजेंटेड। इट इज़ नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, इट इज़ अबाउट फ्रॉड। आप देखिए, आप अगर किसी को फंसाने के लिए, किसी लड़की को आप फंसाने के लिए आप अपने आप को मिसरिप्रेजेंट करोगे और फिर शादी कराओगे, शादी करने के बाद फिर आपकी असलियत निकलेगा और फिर आप उन पर दबाव डालोगे
कि नहीं मैं वो नहीं, मैं ये हूं और आप भी ये बनना होगा. दैट इज रॉन्ग. हमारा कोई जेन्युइन इशू हो, वी डोंट हैव ए प्रॉब्लम. लेकिन आप अपने आप को मिसरिप्रेजेंट करोगे, किसी को कन्विंस करके शादी करोगे, शादी करने के बाद उन पर दबाव डालोगे, ये नहीं चलेगा. जी, आप चुनाव के लिए बस थोड़ा ही समय बाकी है, तो आप असम पे जा रहे हैं. अगर असम की जनता या वोटर पांडा जी से जानना चाहते हैं कि भाजपा को फिर से क्यों वोट दे, तो आप क्या बताएंगे? देखिए, भाजपा सरकार, एनडीए सरकार असम में जो किया है 5 साल, जी, ये बहुत दिनों का सपना था. असम में सुरक्षा, समृद्धि, संस्कृति. सुरक्षा तो इतने दशकों से यहाँ मिलिटेंसी चल रहा था. जिस तरह का अभी जो बाकी रिमेनिंग बोडो मिलिटेंट्स, उनके हथियार सरेंडर करके मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, ये तो 20 साल पहले होना चाहिए था. लेकिन भाजपा सरकार में हुआ, मोदी सरकार के आशीर्वाद से हुआ. ये कहना पड़ेगा कि मोदी जी का जो फोकस रहा है असम पर, मोदी जी का जो फोकस रहा है नॉर्थ ईस्ट पर, ये अनमैच्ड. क्योंकि इतने सारे उनसे पहले प्रधानमंत्री जितने बार आए थे असम को और नॉर्थ ईस्ट को, उन सबको मिलाकर तुलना करने से भी मोदी जी यहाँ ज़्यादा बार आए हैं. जी. और उसी तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जो फोकस दे रहे हैं पार्टी को, और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो सुरक्षा पर फोकस किए हैं. समृद्धि के बारे में आपको बोल चुका हूँ जी. ये संस्कृति के बारे में बोल चुका हूँ. मेरे ख्याल में आप जाके जब पूछोगे ग्राउंड में, मुझे बहुत सारे जगह पे ये एक फ्रेज़ मिलती है, यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है. हम चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व, हम चाहते हैं सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वाल जी का नेतृत्व, हम चाहते हैं भाजपा और एनडीए सरकार यहाँ. तो इट इज़ अ मल्टीफैसेटेड थिंग. From whether you look at governance, crackdown on corruption, improvement of security, development, focus on renaissance of Assam's culture and ethos, from all counts, I think people are very happy with us. Okay. Thank you, Pandaji, for giving us time amidst your busy schedule. So I hope that your dream and bringing BJP back fulfill this time. So we wish from the Time 8 family to you a great success. Thank you very much, and best wishes to all the very large viewership of Time 8. আৰু এই আছিলে জয় পাণ্ডা ডাঙৰীয়া, তেখেতে জনালে. গতিকে মাজত কিছু সময় আছে, আমি চাম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে তেওঁলোকে কোৱাৰ দৰে কিমান জনতাৰ কাষলৈ যাব পাৰে. নিৰ্বাচনলৈ কেইটামান ঘণ্টা থাকোঁতে তেওঁ যথেষ্ট কথা আমাৰ আগত ক'লে. গতিকে জনতাই নিৰ্ধাৰণ কৰিব আপোনালোকে কাৰ পক্ষে যাব. কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ বাবে, সভ্যতা ৰক্ষাৰ বাবে আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে তেওঁলোকে কাম কৰিছে, আৰু এইকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ তেওঁলোকে জনতাৰ ওচৰলৈ ভোট বিচাৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে. ধন্যবাদ.